Hello friends, welcome to our YouTube channel. In this video, we are going to talk about a very great personality who is well known as the father of Indian Green Revolution, that is MS Swaminathan. So friends, आज तक हमने MS स्वामीनाथन का नाम कहीं पर भी देखा है, सुना है या पढ़ा है तो सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि ही इज द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन. अदर देन दैट उन्होंने क्या एजुकेशन परसीव किया, उनका चाइल्डहुड कैसा था, व्हाट मेक्स हिम द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये सब चीज़ें कभी हमने इतने गौर से नहीं देखी है. लाइक टू बी अ फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, ये बहुत बड़ी चीज़ है जिसे हरित क्रांति कहा जाता है. अदर दैन दैट ये चीज़ शायद बहुत कम लोगों को पता होंगी कि उन्होंने पहले अपना जो इनिशियल एजुकेशन है वो मेडिकल फील्ड से लिया है और बाद में उनका जो इंटरेस्ट है वो एग्रीकल्चरल साइंस की तरफ बढ़ा था. तो फिर उन्होंने बाद में एग्रीकल्चर फील्ड में दिलचस्पी दिखाई है. तो आइए जानते हैं MS स्वामीनाथन, द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, उनके लाइफ के बारे में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. The word impossible exists mainly in our minds, and that given the requisite will and effort, great tasks can be accomplished. Yes, this is something MS Swaminathan believed. He always believed that nothing is impossible if we have the confidence in ourselves. उन्होंने कभी भी ये नहीं सोचा कि ये मैं कर नहीं सकता. Like he was so sure about that, yes, I can do this, and this was something which he learned from his father. Such a great man. So friends, points that will be covered in this video are about his childhood, education, what makes him change the field, like he switched from medical field to agricultural field, so what makes him do that. Then regarding awards and achievements, about his biography and the books he has written, and regarding his recent works are also added in this video. Like he is about 95 years old, and today also he is working, like he is engaged in something, so that also we will discuss about. So let's get started from the childhood of this great personality. The full name of MS Swaminathan is Manakombu Sebastian Swaminath. He was born in Kumbakonam in the state of Tamil Nadu on 7th August 1925. His father was a surgeon. उनके पिताजी जो थे वो डॉक्टर थे और उनका नाम था डॉक्टर M.K. Sebastian और उनकी मदर का नाम था पार्वती तंगमल्लम सेबास्टियन. He was the second son of them. वो दूसरे चाइल्ड थे उनके घर के. Other than that, at the age of 11, he lost his father. MS Swaminathan has learned many things from his father, and he was also very close to him. So at the age of 11, he lost his father. उसके बाद जो उनकी जो देखभाल थी वो उनके अंकल ने की. वो भी एक डॉक्टर थे. He was a radiologist and his name was M.K. Narayan Swamy. So friends, moving towards the another point, that is about his education. So at the age of 15, he passed his 10th. That is, at that time it is to called matric. So he matriculated at the age of 15. और उन्होंने जो स्कूलिंग की है उनकी वो की है द कैथोलिक लिटिल फ्लावर हाई स्कूल इन कोम्बकोनम से. उसके बाद इट्स लाइक ही वेंट टू द मेडिकल फील्ड, लाइक कमिंग फ्रॉम द फैमिली ऑफ डॉक्टर्स. मतलब उनके जो फादर थे वो डॉक्टर थे, उनके अंकल डॉक्टर थे. सो नेचुरली ही वेंट टूवर्ड्स द मेडिकल फील्ड एंड ही टुक द एडमिशन ओवर देयर. He went on to finish his undergraduate degree in biology at Maharaja's College in Trivandrum, Kerala. Now it is known as University College Thiruvananthapuram. It is situated in Thiruvananthapuram. So later he studied from 1940 to 44 and earned his bachelor
ऑफ साइंस डिग्री इन जूलॉजी। मतलब यहाँ तक जो था उन्होंने उनका जो मेडिकल से रिलेटेड जो करियर था वो कर लिया था, और फिर उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया कि उन्होंने अपनी फील्ड चेंज कर दी, एंड स्वामीनाथन जी डिसाइडेड टू परस्यू अ करियर इन एग्रीकल्चरल साइंसेस. So later he took the admission in the Madras Agricultural College. Now it is known as the Tamil Nadu Agricultural University, जहाँ से उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री ली एग्रीकल्चरल साइंस में. तो इस तरीके का जो था उनका वो एक एजुकेशन का जर्नी था कि उन्होंने अपनी फील्ड चेंज की. और अभी मैं आपको बताऊंगी कि वाई ही चेंज्ड हिज फील्ड. वी विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि व्हाट मेक्स हिम चेंज हिज फील्ड. सो रिगार्डिंग दिस थिंग एक स्टेटमेंट आता है स्वामीनाथन जी की तरफ से. आई विल रीड इट आउट. माई मोटिवेशन स्टार्टेड विद द ग्रेट बंगाल फेमाइन ऑफ 1943 when I was a student at the University of Kerala. There was an acute rice shortage, and in Bengal about 3 million people died from starvation. All of our young people, myself included, were involved in the freedom struggle which Gandhi had intensified, and I decided I should take agricultural research to help farmers to produce more. Really, like, what a thinking man, really great person. What makes him do that? This is something very 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 out of the box. उन्होंने सोचा कि मैं अगर मेरी तरफ से कुछ कर सकूं इन फार्मर्स के लिए, इस बंगाल फेमाइन को कम करने के लिए. देखिए उनकी एक छोटी सी जो सोच थी कि मुझे कुछ करना है उनके लिए, कि वो सिर्फ प्रोड्यूस करे ज़्यादा, उस चीज़ ने उन्होंने उनको फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन बना दिया. लाइक सी, दिस इज हाउ द ग्रेट पर्सनालिटी वर्क्स. सो मूविंग अहेड, let's have look towards the awards and achievement he has got. So he has received many awards. In 1967 he received Padma Shri award. After that in 1971 he received Burlockzy award. This award was given to him for pioneering the work over wheat. He started the work over wheat, so he got the award. In 1973 he received Padma Bhushan. Later on he received Krishi Ratna award in 1986. Other than that he have received many awards, and he also received the World Food Prize in 1987, which was given by FAO. He also received the Padma Vibhushan in 1989. MS Swaminathan has received many international and national awards. He is well known for his role in Indian Green Revolution, a program under which high yield varieties of wheat and rice were planted. Other than being the father of Indian Green Revolution, MS Swaminathan जी ने बहुत सारे रोल्स प्ले किए उनके लाइफ में. मतलब वो एक साइंटिस्ट भी थे, तो ऑब्वियसली देखो, मतलब वो एक हरित क्रांति ला रहे पूरे देश में, तो ऑब्वियसली वो एक साइंटिस्ट भी थे. अदर देन दैट वो एक्स मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के. उसके बाद ही वॉज ऑल्सो द एक्स प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स ऑफ इंडिया. उसके बाद फ्रॉम 1972 टू 1979 ही वॉज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जिसे हम ICAR कहते हैं. उसके बाद ही वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल फ्रॉम 1972 टू 1980. सो ये दौरान वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में. देन ही ऑल्सो सर्व्ड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फ्रॉम 1982 टू 88. IRRI जिसे कहते हैं, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर भी उन्होंने डायरेक्टर ऑफ जनरल का रोल निभाया है.
उसके बाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन 1988. In 1999, he was one of the third Indian on the Times list of the 20 most influential Asian people of the 20th century. It was a really great thing. बहुत ही बड़ी चीज़ थी कि पूरे एशिया में जो 20 लोगों का लिस्ट होता है जहाँ पे सारे इन्फ्लुएंशियल एशियंस का नाम है, वहाँ पे उनका वो थर्ड इंडियन थे. मतलब सो इट वॉज रियली थिंग ऑफ प्राइड. उसके अलावा उन्हें मिलेनियम प्राइज़ भी मिला था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर AB वाजपेयी जी से इन 88th नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड ऑन 3rd Jan to 7th Jan 2001 at IARI न्यू दिल्ली. सो मूविंग अहेड, हमने देख लिया है कि कितना कुछ उन्होंने उनके लाइफ में अचीव किया है और कितने सारे रोल्स उन्होंने प्ले किए हैं एक साइंटिस्ट होने के साथ साथ. तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक उनका जो एक पर्सनालिटी है उसका और एक पार्ट देखते हैं कि इन सब चीज़ों के साथ साथ वो एक ऑथर भी है. ये पता होगा आप लोगों को कि वो एक ऑथर भी. उन्होंने बहुत ही फेमस बुक लिखी है व्हीट रिवॉल्यूशन, जो उन्होंने उसमें पूरा जो उनका हाउ ही गॉट टू द व्हीट रिवॉल्यूशन वो सब चीज़ें उन्होंने वहाँ पे लिखी है. एंड ही रोट दैट बुक इन 1993. उसके बाद उन्होंने एक और बुक लिखी थी 1995 में. उस बुक का नाम था फार्मर्स राइट एंड प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज अ डायलॉग. तो उसमें उन्होंने जो फार्मर्स की जो राइट्स है उसके बारे में लिखा था. देन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज उसके बारे में भी उन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है. अगर कभी इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आपको पढ़ना है तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हो. उसके बाद उन्होंने 2006 में बुक लिखी थी अ एवरग्रीन रिवॉल्यूशन. तो ये भी बुक बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने लिखी है. और कई सारी बुक्स है जो उन्होंने लिखी है, पर मैं यहाँ पे मैंने सिर्फ जो 3 इम्पॉर्टेंट बुक्स जो उनकी फेमस है वो मेंशन की है. उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं उनकी बायोग्राफी के बारे में. मतलब उनकी बायोग्राफी लिखी गई है. तो ऐसे 2-3 बुक्स है जहाँ पे उनके लाइफ के बारे में, उनके वर्क के बारे में या फिर जो भी उनके कंट्रीब्यूशंस है उनके बारे में दिया गया है. पर यहाँ पे मैंने 2 बुक्स जो कि फेमस है और जहाँ पे एकदम प्रॉपरली आपको MS स्वामीनाथन जी के बारे में पढ़ने मिलेगा वो बुक्स को मेंशन किया है. तो फर्स्ट बुक है जो लिखी है गीता गोपाल कृष्णन ने. उन्होंने ये बुक लिखी थी 2002 में और इस बुक का नाम है MS स्वामीनाथन वन मैन्स क्वेस्ट फॉर अ हंगर फ्री वर्ल्ड. सो ये बुक का नाम है. उसके बाद एक बुक लिखी गई है RD अय्यर जी ने. तो उनके बुक का नाम है, मतलब जो बायोग्राफी उन्होंने लिखी है MS स्वामीनाथन जी के लिए उसका नाम है साइंटिस्ट एंड ह्यूमनिस्ट MS स्वामीनाथन. सो ये दोनों बुक्स में उनकी लाइफ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया है. सो इफ़ आप इंटरेस्टेड हो रीडिंग में, बायोग्राफीज़ पढ़ने में, तो कभी पढ़ लेना. आफ्टर ऑल इज़ द फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन. Then currently he is spearheading a movement to bridge the digital divide, and that movement is known as Mission 2000 Every Village a Knowledge Center. So इस तरीके का उनका जो रिसेंट वर्क है और वो हर तरीके से अपने आप को शो कर रहे हैं आज भी. मतलब सी गाइज, बीइंग अ फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन, अगर किसी इंसान को इतनी बड़ा जो है वो टैग मिल रहा है, इतनी बड़ी पोजीशन मिल रही है, सो उसको भी वो चीज़ के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है. लाइक पर्सन की पर्सनालिटी कब डेवलप होती है, जब उसके जो काम होते हैं वो सही होते हैं, वो अच्छे होते हैं. सो उनके लाइफ से सीखने जैसी बहुत कुछ चीज़ें हैं.
लाइक उनका मेडिकल फील्ड की तरफ इंटरेस्ट था, बट व्हेन ही सॉ द बंगाल फेमाइन, उनको उनके मन में जो वो चीज़ डेवलप हुई, जो सोई हुई चीज़ थी वो जागी, और उनके वजह से वो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वो इंडिया में पॉसिबल हुआ. सो दिस इज़ समथिंग वी शुड लर्न फ्रॉम हिम, कि जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है. नोबडी इज़ गोइंग टू कम, जो कुछ भी है वो हमारे अंदर है. नोबडी इज़ गोइंग टू कम एंड से यू डू दिस. उनको किसी ने नहीं कहा था कि तुम एग्रीकल्चरल फील्ड में जाओ एंड जस्ट क्रिएट द ग्रीन रिवॉल्यूशन. ही डिड इट हिमसेल्फ, ही बिलीव्ड हिमसेल्फ, और ही यूज्ड टू बिलीव दैट नथिंग इज़ इम्पॉसिबल. दैट्स व्हाई दिस हैपन. सो guys, I'll just so guys, I will wind up here. Thank you for watching the video till the end, and hope you liked the video, and if you did, please give a big thumbs up, and yes, do subscribe our channel. It's free. Thank you so much.